کبھی کبھی دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کسی نقصان یا جدائی سے نہیں بلکہ بدگمانی سے ہوتی ہے۔ جب تم جانتے ہو کہ تم نے کسی کا دل نہیں دکھایا پھر بھی لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں، تب دل کے اندر ایک خاموش چیخ اٹھتی ہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سچائی ہار گئی ہو اور جھوٹ جیت گیا ہو۔ مگر یاد رکھو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ آخر میں آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں بنتی ہیں، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی تمہارے خلاف بننے والی ہر چال اللہ کی مرضی کے بنا پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو وہی چال تمہارے حق میں بدل جاتی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا جن لوگوں نے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، آخر میں وہی لوگ تمہاری عزت بڑھانے کا ذریعہ بن گئے؟ جنہوں نے تمہارا راستہ روکا، اللہ نے وہیں تمہارے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ یہی ہے اللہ کا طریقہ، وہ تمہیں خاموش رکھتا ہے تاکہ جب وہ تمہارا دفاع کرے تو دنیا حیران رہ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خاموشی میں چھپا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تم ہار گئے، لیکن دراصل تمہیں اللہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کب تمہیں واپس سامنے لانا ہے اور کس وقت تمہاری عزت سب کے سامنے بحال کرنی ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری خاموشی کمزوری ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ تمہارا ایمان ہے، کیونکہ صبر صرف دکھ پر نہیں ہوتا، صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ تم غلط سمجھے جانے پر بھی خاموش رہو۔ تم اپنی صفائی نہ دو، بلکہ اللہ پر چھوڑ دو کہ وہ تمہارے حق میں بولے، اور وہ بولتا ہے اپنے وقت پر، اپنے انداز میں، ایسے کہ سچ خود چل کر سب کے سامنے آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں عزت دینے سے پہلے ذلت دکھاتا ہے تاکہ تم سیکھو عزت بندوں سے نہیں، صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ تمہیں گرانے نہیں دیتا، بس تھوڑا دیر تک دیکھنے دیتا ہے کہ کون تمہارے ساتھ سچا ہے اور کون موقع دیکھ کر بدل جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ تمہاری کہانی خاموشی سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم رو رہے ہوتے ہو اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کی آنکھوں کے یہ آنسو میں رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ کبھی کبھی اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے تاکہ انسان کا اصل چہرہ دنیا دیکھ لے۔ جو تمہارے خلاف بولتے تھے آخر میں وہی تمہاری سچائی کا اعتراف کرتے ہیں، اور تمہیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ کی تدبیر کو سمجھنے کے لیے بس ایک ہی چیز چاہیے، بھروسہ۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو تمہیں کسی کے منصوبے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے انصاف دیتا ہے تاکہ تم سیکھو اصل بدلہ سکون ہوتا ہے، اور اصل سکون معافی میں چھپا ہوتا ہے۔ جو تمہیں توڑنے آئے تھے اللہ انہیں تمہارے قدموں کی دھول بنا دیتا ہے۔ تو اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سب تمہارے خلاف بول رہے ہیں، کوئی تمہارا نہیں، تو جان لو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے لیے اپنی خاموش تدبیر بنا رہا ہے۔ تمہارے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دراصل تمہارے لیے ایک نئی راہ بن رہی ہیں۔ تمہارے زخم تمہارا تعارف بنیں گے، تمہاری خاموشی تمہارا جلال بنے گی، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ خود تمہیں عزت دے گا ایسے مقام پر جہاں سب حیران رہ جائیں گے۔ سوچو ذرا، تمہارے خلاف سازشیں ہوئیں، تم پر باتیں کی گئیں، مگر تم اب بھی قائم ہو۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اس رب کی تدبیر ہے جو تمہیں ہر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ تو یاد رکھو، لوگ تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں مگر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ لوگ تمہیں جھوٹا کہہ سکتے ہیں مگر سچ کو دبا نہیں سکتے، اور جب اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی آواز اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آج تم پر الزام ہے تو کل تمہارے لیے عزت لکھی ہے۔ اگر آج تمہارے خلاف سازش ہے تو کل وہی سازش تمہارے حق میں پلٹے گی، اور اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم بالکل اکیلے ہو تو یاد رکھو اللہ کی تدبیر ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو خاموش رہ کر اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تم بس اتنا کرو، اپنے دل کا بوجھ اللہ کو سونپ دو۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کیا گیا، سب اس کے حوالے کر دو اور کہہ دو یا اللہ، میں نے سب سنبھال لیا، اب تو میرا حق خود ظاہر کر دے۔
यकीन करो, जब अल्लाह बोलता है तो वो हर खामोश दिल को इज्जत से भर देता है। ये वीडियो तुम्हें यही याद दिलाने आई है कि तुम्हारे खिलाफ जितनी साजिशें हुईं वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाने के लिए थीं जहां सिर्फ अल्लाह की तदबीर काम करती है। और जब वो तदबीर काम करती है तो हर झूठ, हर साजिश खुद ब खुद मिट जाती है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक सब बदल जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, बातें बदल जाती हैं और सबसे बढ़कर लोग बदल जाते हैं। तुम सोचते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पीठ पीछे कोई खेल खेला जा रहा हो, कोई साजिश, कोई गलतफहमी, कोई ऐसा लफ्ज जो तुमने कहा ही नहीं मगर लोगों ने यकीन कर लिया। तुम्हारा नाम, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ किसी और की जुबान के रहम पर आ गया और तुम चुप हो गए, क्योंकि तुम्हारे पास सफाई देने की हिम्मत नहीं बची थी। तुम्हारे पास सिर्फ एक यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है, और बस यही यकीन किसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, मगर अल्लाह का निजाम कभी किसी के बुरे इरादों पर नहीं चलता। वो खामोश रहता है, देर करता है, लेकिन फिर एक दिन वो अपना प्लान दिखाता है जो सब मंसूबों को पलट देता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें हुईं, तुम्हारा रब उन सब से वाकिफ है। वो जानता है किसने तुम्हें रुलाया, किसने तुम्हें झूठा कहा और किसने तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया। और फिर वही रब एक दिन तुम्हें ऐसी इज्जत देता है कि जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वो खुद हैरान रह जाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें नीचा दिखाकर ही बुलंद करता है। वो तुम्हें लोगों की नजरों से गिराता है ताकि तुम उसकी नजर में कीमती बन जाओ। वो तुम्हें लोगों से दूर करता है ताकि तुम उसके करीब आ जाओ। और तुम समझते हो तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है, मगर हकीकत में अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया रास्ता बना दिया होता है। तुम्हें याद है, तुमने एक दिन रोकर कहा था, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, अब सब तेरे हवाले। तब से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तुमने सब्र किया, तुमने खामोशी इख्तियार की और अल्लाह ने तदबीर शुरू कर दी। आज भी तुम्हें लगता है सब कुछ गलत सिमत जा रहा है? याद रखो, अल्लाह कभी सीधे रास्ते को उल्टा नहीं करता, वो हमेशा उल्टे रास्ते को सीधा कर देता है। जो तुम्हारे खिलाफ हो रहा है वो दरअसल तुम्हारे हक में लिखा जा रहा है। कभी कभी तुम्हारे आसपास की चुप भी एक निशानी होती है। लोग बातें बंद कर देते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं और तुम समझते हो तुम अकेले रह गए, मगर असल में अल्लाह तुम्हें खामोश हिफाजत में ले लेता है। वो तुम्हें साजिशों से निकालकर अपनी पनाह में ले जाता है। यही वो वक्त होता है जब तुम्हें सब्र का मतलब समझ आता है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि यकीन है कि अल्लाह अभी कुछ ऐसा बना रहा है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह के यहां कुछ भी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें एक मुकाम से हटाकर दूसरे मुकाम पर ला रहा होता है। लोग तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करते हैं और अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान खोल देता है। तुमने सुना है ना, जब यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था तो वो समझ रहे थे कि उन्होंने उससे जान छुड़ा ली, मगर दरअसल अल्लाह ने वहीं से एक बादशाह की कहानी शुरू की थी। ऐसा ही होता है, जब तुम्हारे साथ लोग साजिश करते हैं, वो तुम्हें गिराने का इरादा करते हैं और अल्लाह तुम्हें उठाने का मंसूबा लिख देता है। और यहीं से एक नया मरहला शुरू होता है, जब बंदा रोना छोड़ देता है, जब वो कहता है, या अल्लाह, जो हो रहा है मैं तेरे हवाले। तब अल्लाह कहता है, अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। ये वो लम्हा होता है जब सब्र इबादत बनने लगता है, जब दिल के अंदर से खौफ निकलने लगता है और तुम्हें महसूस होता है कि साजिशों के बीच भी एक ताकत है जो तुम्हें थामे हुए है। ये ताकत अल्लाह की तदबीर है जो कभी गलत नहीं जाती। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, सब उल्टा लग रहा है, सब बंद लग रहा है, लेकिन मत भूलो, अल्लाह के प्लान हमेशा देर से समझ आते हैं, और जब वो जाहिर होते हैं तो तुम्हारा दिल कहता है, अल्लाह, यही वो था जिसके लिए मैं रो रहा था, और यही वो है जो मेरी दुआ से बेहतर निकला। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां ले आती है जहां कोई नहीं बचता, न दोस्त, न सहारा, न उम्मीद, बस एक एहसास रह जाता है
कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या तुमने महसूस किया है? यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीब होता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो अपनी रहमत का एक दरवाजा खामोशी से खोल देता है। तुम थक गए हो ना, हौसला टूट गया है ना, तुमने हर तरफ से मायूसी देखी है और अब तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सुनो, ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाता है। वो तुम्हें दुनिया से काटकर अपनी आगोश में ले लेता है। वो कहता है, मेरे बंदे, अब बस तू और मैं। जिंदगी की सच्चाई यही है, कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे तोड़ देता है ताकि तुम सिर्फ उससे जुड़ जाओ। तुम समझते हो सब छिन गया, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि वो खुद तुम्हारा दिल भर दे। और जब वो दिल में उतरता है तो फिर किसी इंसान, किसी मोहब्बत, किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें लगता है कि अब जो दुख है वो भी सुकून दे रहा है, जो तन्हाई है वो भी दुआ बन गई है, और जो खामोशी है वो भी जिक्र बन गई है। यही तो कौर्ब है, जब बंदा अल्लाह से बातें करता है बिना अल्फाज के। जब वो कहता है, मैं राजी हूं, या अल्लाह बस तू मेरे साथ रहना। सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था। अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया नसीब लिख रहा था। लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी ताकि तुम अल्लाह के करीब आ जाओ, तुम्हारे सब्र को आजमाया ताकि तुम्हारा ईमान चमक उठे, और तुमने देखा आखिरकार तुम्हारे सब्र का रंग बदलने लगा। अब तुम वो नहीं रहे जो हर चीज से डरता था। अब तुम जान चुके हो कि जिसे अल्लाह संभाल ले उसे कोई गिरा नहीं सकता। ये यकीन ही असल ताकत है, यही ईमान का सुकून है। यही वो लम्हा है जब बंदा कहता है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अब कोई ताकत नहीं बची, मगर यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा कर देता है जो तुमने कभी महसूस भी नहीं की। वो तुम्हें संभालता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। वो तुम्हें उठाता है जब सब तुम्हें गिरने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो थाम लेता है तो तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया की कोई तकलीफ अब तुम्हें गिरा नहीं सकती। यही वो ईमान है जो आंसुओं से पैदा होता है। यही वो यकीन है जो सब्र के बाद अता होता है। यही वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह के होने से मिलता है। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम अल्लाह से कुछ मांगते नहीं, बस उसके होने में सुकून पाते हो। तुम्हें यकीन है कि अगर वो तुम्हारे साथ है तो सब ठीक है। दुनिया के सारे रिश्ते बदल जाएं, हालात पलट जाएं, मगर तुम्हारे अंदर एक खामोश ईमान रहता है कि अल्लाह की तदबीर कभी गलत नहीं होती। तुमने सब्र किया, तुमने बर्दाश्त किया, तुमने रब पर यकीन रखा, और अब वो तुम्हें वो मुकाम देगा जहां तुम्हारी आंखों के आंसू भी इबादत बन जाएंगे। कभी कभी बस इतना कहना काफी होता है, अल्लाह मेरे लिए काफी है। ये जुमला छोटा है, मगर इसमें वो ताकत छुपी है जो टूटे दिल को जोड़ देती है, बेसहारा को सहारा दे देती है, और थके हुए दिल से कहती है, बस रुक जा, अब तू अकेला नहीं। अगर तुम्हारा दिल भी आज ये महसूस कर रहा है कि दुनिया के सब दर बंद हैं मगर एक दर खुला है, तो कमेंट में दिल से लिखो, अल्लाह मेरे लिए काफी है। ये जुमला तुम्हारी दुआ बन जाएगा, और तुम देखोगे वो दिल जो अभी कांप रहा है अचानक किसी अनदेखी रहमत में लिपट जाएगा। अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो बस वक्त पर अपनी रहमत भेजता है, बिल्कुल उसी लम्हे जब दिल हार मानने वाला होता है। या अल्लाह, जो भी इस लम्हे रो रहा है, जो टूट चुका है, जो थक गया है, उसे अपने सुकून से भर दे। उसके लिए वो रास्ता खोल दे जिसके लिए उसने खामोशी में दुआ मांगी थी। या रब, हमें ऐसा दिल अता कर जो तेरे फैसलों पर राजी हो जाए, और ऐसा यकीन दे कि हम कह सकें, अल्लाह मेरे लिए काफी है। ये वीडियो हयात दीन की तरफ से है, जहां हम इंसान के दिल के अंदर छुपे उस सुकून को तलाश करते हैं जो सिर्फ अल्लाह के कुर्ब से मिलता है। यहां बातें नहीं, एहसास बोलते हैं। यहां रिश्तों, दुनिया, गम और दुआ के बीच हम तुम्हें उस रब तक ले जाना चाहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे टूटने में भी संभाल लेता है। अगर तुम्हारा दिल इस वक्त बेचैन है तो जान लो, अल्लाह तुम्हें हयात दीन के जरिए यही कहना चाहता है, मैं तुम्हारे करीब हूं, बस मुझे याद रखो।